Okay, so today we begin chapter 9. I'm sorry, chapter 6. Yeah, this is lecture 9. And in this one lecture, our goal will be to cover as much of fluid mechanics as possible because fluid mechanics is a separate course, but we need only parts of it that are relevant to this course. Yeah. So even though most of our problems we will be with solids, but you will see why fluids are important. You will still see fluids in applications. So let's begin that. Uh, so normally you are aware of the difference between solids, liquids, and gases. So we'll only focus on properties of fluids that are relevant to us, and those properties will be mentioned in a different way. Okay, rather than talking about molecules and chemistry and bonds, because that is a topic for physicists and chemistry guys. For us, we need to know how to distinguish between, let's say, solid and liquid under the action of forces. Yeah? The main thing here is forces. How do they respond to forces? So, for example, here is an example um, where you see liquid under the action of a force. Yeah. So, can you compress this? Yeah. Although microscopically there will be little change in volume, but macroscopically on a larger scale, it is very unlikely that you see a significant change in volume. So liquids are incompressible, okay, um, compared to most of solids. On the other hand, gases are compressible. If you try to compress a gas, yeah, you do change the volume. Yeah, the volume has changed now. So that is one crucial difference. And yeah, solids are solids are also incompressible. Yeah, do not confuse compressible. So one is compressible. I think I need to change this. Something has changed here. Okay, yeah, this should be enough. Yeah, this is better. Yeah. So you hear two different properties here. One is compressible and one is deformable. Yeah. When we were talking about rigid models, we meant deformable. Yeah. So something which is not deformable is rigid. Compressible is different. Compressible is when the volume changes. Yeah. Deformable doesn't mean that the volume changes. Something can deform without changing the overall volume. So can you give me an example from solids? Mm, or actually not an example, most of the time it happens. If you remember Poisson contraction, can you recall that? What happened there is that if you increase the length of an object, of a solid object, what happens is that the diameter decreases. And why that happens? Because the overall volume doesn't change. Yeah, volume stays constant in the process. So that means that that solid is also incompressible. ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. Okay, so liquid shares that quality with solid, that although you can deform a liquid, yeah, for example यहाँ पे liquid का ये shape है, आप इसी liquid को आप किसी glass में डाल दें, so it will uh, take that shape without changing the volume. So yes, it is deformable because it can change shape, but without changing the volume. Gas का तो आप volume भी change कर सकते हैं because that gas can fit into a smaller volume. But this is again, this distinction is doesn't actually hit the bull's eye. Mm. Another significant difference between, and by the way, both liquids and solids are called fluids. Yeah. So we need to distinguish between fluids on one hand and solids on the other. Yeah. Of course, in fluid you have gas and liquid,
but that is a separate topic. You already saw that, yeah? That you see the difference between gases and liquid, but we need the difference between solid and fluid. Why am I saying that? Because both solid and fluid are incompressible, yeah, and they are both I mean liquid, yeah, both liquid and solid are incompressible and they are both deformable. So what is the difference? Solid और liquid में कोई फर्क तो होना चाहिए ना, वो यहाँ से इस स्लाइड से आपको नजर नहीं आएगा. So let me try to explain it from this slide. On the left hand side you have liquid or fluid, yeah, okay, you can even have gas here. And on the right hand side you have this deck of cards, and yeah, you can think of it as a solid, yeah. Now you know shear stress, yeah, shear stress is force divided by area, the shear force divided by area. So what happens to, if you remember the normal stress, you had length L, and let's say there is a tensile force F, and if it changes by delta L, so okay, you have a name for this, you call this as your deformation or elongation, yeah. And then you talk about stress and strain. So from deformation you calculate strain. Here, what will be the deformation in this case? Yeah. So for example, initially this was a rectangle. Yeah. If I zoom this out, these cards were in the shape of a rectangle. You agree? Initially. And if you fix this part and you just move this with your hand, you change this to another configuration where those same cards, they slip a little bit past one another, and you go from a rectangle to a parallelogram. This is what we mean by deformation. Yeah. So can anybody tell me how do I represent this deformation? Can I represent this by delta L like that? यहाँ तो हम डेल्टा एल को डिफॉर्मेशन कह रहे हैं ना, यहाँ पे हम डिफॉर्मेशन किसको कहेंगे? When you just change the shape of something in shear. कोई हिंट दे सकता है? The length doesn't change, yeah? This is still L, this is still L. What has changed here? This was a rectangle and now this is a parallelogram. Shape change हुआ है, उस shape को आप कैसे represent करेंगे? Just look here. Let me just change the color. Yeah. ये पहले लाइन स्ट्रेट थी ना, अब ऐसे हो गई है, तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ है? एंगल चेंज हुआ है ना. Let's call that gamma. So the angle can represent a deformation here. ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर ये सॉलिड है तो सिर्फ एंगल चेंज हो सकता है. ठीक है. लिक्विड में आप क्या सजेस्ट करते हैं? लिक्विड में यू ऑल्सो सी समथिंग लाइक दैट, या दैट इमेजिन दिस, you have applied a force, and imagine, let me change the color again. Because this layer of liquid is closer to the moving plate, so it will deform more, it will deform less, and because this is stationary, so it will deform least, and you have this change of shape here. तो यहाँ पे भी change of shape हो रहा है, यहाँ पे भी change of shape हो रहा है. क्या फर्क है आपके ख्याल में दोनों में? Can you see that? The difference? Can anybody see any difference in these two diagrams? They both give the same type of deformation, yeah, under the action of force. क्या फर्क हो गया, जरा सोच के बताएं मुझे. सर उसमें परमानेंट चेंज होगा, इसमें विद टाइम चेंज होगा और दोबारा वो उसी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा. नहीं, इसको अगर आप छोड़ दें, लेट्स से आप हाथ हटा दें, तो क्या होगा? ये
ये कार्ड्स वापस आ जाएंगे रेक्टेंगुलर में, वी आर नॉट नो सर। डिस्कसिंग। सो ये भी परमानेंट चेंज हो गया ना। Let me सर just ऑयल ask you another question. Let's say this force is, क्योंकि what you need to do here, when you start from this point to this point, you need to increase the force. Agreed? Solid में. Yes, sir. If you don't increase the force, what will happen? If the force is constant, let's say जिस शक्ल में आपको ये नजर आ रहा है ना, इस टाइम पे ये फोर्स कांस्टेंट है, तो जब ये फोर्स कांस्टेंट है तो इसका जो रिएक्शन है वो भी कांस्टेंट होगा। जी सर। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, ये विल इट कीप चेंजिंग और विल इट जस्ट रिटेन दिस शेप? सर इसी शेप में रहेगा। इसी शेप में रहेगा, इवन दो यू आर नॉट इंक्रीजिंग द फोर्स। समझ आ गई? जी सर। लिक्विड में क्या होगा? लिक्विड में अगर ये फोर्स कांस्टेंट है फिर क्या होगा? सर मूव होता रहेगा। Yeah, the liquid will not stop moving unless you remove the force. आप फोर्स रिमूव करेंगे तो इट विल स्टॉप मूविंग। समझ आ गई? तो यहां पे डिफॉर्मेशन के लिए फोर्स का इंक्रीज करना मस्ट नहीं है, जस्ट अ कांस्टेंट फोर्स इज इनफ। वहां पे जब वो बैलेंस आ जाएगा, सो ये फर्क है, बुनियादी फर्क है लिक्विड में और उसमें सॉलिड में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि shear जो स्ट्रेस है वो सेम है, दोनों में टाउ इक्वल्स एफ ओवर ए, ये फर्क, ये चेंज नहीं हो रहा। और ये एरिया कौन सा होगा बताएं इन डायग्राम में, ये कौन सा एरिया होगा shear? अगर मैं स्ट्रेस कैलकुलेट करता हूं, ये जो पैरेलल एरिया है ना, एरिया पैरेलल टू द फोर्स, ये तो आपको पता है ना। आई होप यू रिमेंबर इट फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर। अब इसका मतलब ये है कि हम जो सॉलिड के लिए ये प्लॉट करते थे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन, लेट्स से स्ट्रेन को मैं यहां गैमा लिख देता हूं ये, ठीक है, तो इस तरह का प्लॉट आपको नजर आएगा। तो यहां पे बाय डिफॉर्मेशन यू मीन द चेंज इन एंगल ओनली, क्योंकि यहां पे सिर्फ एंगल है, यहां पे कोई और चीज नहीं है, मूव मोशन नहीं है। यहां पे द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस tau and the deformation is different. Deformation will not be just gamma, because you also need to represent the motion. यहाँ मोशन नहीं है, there is no motion here. यहाँ पे मोशन भी है, तो मोशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गैमा डॉट वेलोसिटी। समझ आ गई बात आप? So that is what we show in the next slide. Next slide पे आपको properties of now this is how fluids are different. That if you have an applied force which tries to deform a fluid layer, ये fluid layer आपको नजर आ रहा है ये वाला, and let's say you have velocity, so the response to an applied force will be velocity, and not just velocity but a change in shape, a change in shape. So if this is your thickness of the layer and if this is velocity, तो अगर ये सॉलिड होता ना तो वेलोसिटी की जगह हम क्या करते, यहाँ पे क्या करते हम डेल्टा एक्स करते। तो रिमेंबर डेल्टा एक्स ओवर एच विल, आपको याद है ये मुझे क्या दे देगा डेल्टा एक्स ओवर एच? दिस विल गिव मी द टेंजेंट ऑफ सम एंगल, या द टेंजेंट ऑफ दैट गैमा, जिसको मैंने गैमा कहा हुआ था। So this would be my deformation for a solid. Can you follow this line of argument? जिस तरह कार्ड्स में था ना, कार्ड्स में मेरे पास देखो ना, ये इस डायरेक्शन में I move delta x and this is h, so I have delta x divided by h. This will be related to gamma, yeah. And if I forget about gamma, this is easier to calculate than tangent of gamma. So this is my deformation. Now for fluids, that delta x will be replaced with velocity because it is moving. So you, instead of delta x, you will have velocity. अब आपको समझ आ रही है कि यहाँ पे v over h represents the, so
what should be the name here? Can I call it deformation, V over H? Is it the right name? How should I change the name? It should be called compressibility. no, the rate of deformation, क्योंकि deformation change हो रही है ना. How do I distinguish between delta x over h and v over h? Delta x over h is deformation, yes, but v over h is the rate of deformation, and that it is the rate of deformation which is the response of this fluid to the stress. समझ आ गई बात? ये इक्वेशन आप जब सॉलिड के लिए लिख रहे थे तो क्या लिखते आप? यहाँ पे आप टाउ लिखते, यहाँ पे आप कोई कांस्टेंट लिखते, और यहाँ पे आप क्या लिखते? वो डेल्टा एक्स ओवर एच आप लिखते. ठीक है. अब यहाँ पे आपको v ओवर एच लिखना पड़ रहा है क्योंकि it keeps moving even with a constant tau, and this is a simple relationship. आपको याद है सॉलिड में हमारे पास जब हम सिंपल, ये बाद में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था ना प्लास्टिक में, और यहाँ पे इलास्टिक से पहले सिंपल रिलेशनशिप क्या था? linear relationship, yeah, when you say that stress and strain are proportional, yeah. तो वो जो सिंप्लिसिटी है वो यहाँ पे आपको नजर आ रही है फ्लूइड के लिए, और इस सिंप्लिसिटी को हम कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड. इफ अ फ्लूइड इज सिंपल, it is called Newtonian fluid, and it will have a relationship as simple as we have Hooke's law. So अब आपको समझ आ गई कि जो Hooke's law है वो जिस तरह Hooke's law simple है solid के लिए, by simple we mean linear, that same simplicity or linearity takes the form of this law for fluid, simple fluids. Will you remember this? ये फर्क याद रहेगा लिक्विड और सॉलिड में, सिंपल लिक्विड और सिंपल सॉलिड. ऑल्दो सिंपल इज नॉट अ टेक्निकल नेम, यहाँ पे हम सिंपल की जगह इलास्टिक वर्ड यूज करते हैं, इलास्टिक सॉलिड, और यहाँ पे हम सिंपल फ्लूइड की जगह टेक्निकल टर्म क्या यूज करते हैं? न्यूटोनियन. सो अब मैं अगर एनालॉजी ड्रॉ करूं तो इलास्टिक सॉलिड is a simple model that gives me Hooke's law. Yeah, that gives me Hooke's law. Newtonian fluid is a simple fluid. Yeah, that gives me this law. That's the difference. और दोनों में फर्क ये है कि एक में डिफॉर्मेशन कांस्टेंट होती है और दूसरी में डिफॉर्मेशन जो है ना वो चेंज हो रही है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के साथ. अच्छा, अब यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है क्या? This is what we mean by viscosity. Viscosity आपने जैसे भी कोई पुरानी डेफिनेशन देखी है उसको आप भूल जाएं, क्योंकि वो फिजिक्स वाली डेफिनेशन तो हो सकती है. यहाँ पे जो विस्कोसिटी डेफिनेशन है वो ये है कि it resists. So viscosity is the resistance to the rate of change of deformation. ठीक है, under the action of shear stress. और ये जो सिंपल मॉडल है इसके लिए यू नीड नो स्लिप कंडीशन. नो स्लिप इसलिए है कि अब आप यहाँ पे नोट करें कि when you are moving this top plate, all the layers are moving. ठीक है ना? तो this is what we mean by no slip. तो ये as a whole move नहीं कर रहा. There is no, actually everything is moving and there is a constant gradient. This is what you mean by no slip condition. And can you now see why we are using the word shear stress? Because the area here, yeah. अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि ये जो T है, this is basically force, the shear force divided by area, and which area? This area, ये, ठीक है, shear stress. तो fluid की जो definition है वो shear stress से related है. ठीक है, इसमें कोई question है तो पूछ ले before I move on to the next slide. सर ये नो स्लिप दोबारा बता दें. नो स्लिप, अगर ये स्लिप होता लेट से, तो यहाँ पे क्या होता? Let's go back to the cards, yeah, deck of cards. Deck of cards में आपको नो स्लिप कंडीशन नजर आ रहा है. देखो ना, ये
जितने लेयर्स हैं डिफरेंट कार्ड्स उनमें जो फर्क है वो एक यूनिफॉर्म फर्क है। अगर ये स्लिप होता तो एक बहुत आगे निकल जाता ना। आप अगर इसको केयरफुली नहीं करेंगे तो इसमें से एक उधर निकल गया इधर, तो ये आपको ये सिंपल लाइन नजर नहीं आएगी आपको, समझ यस आएगी। सर। और इस सिंपल लाइन की वजह से आप ये v ओवर a लिख सकते हैं ना। ये v ओवर h आप क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इट टेक्स दिस सिंपल शेप। तो यहाँ पे ये स्लिप नो स्लिप ना हो, स्लिप इसमें आ जाए तो फिर ये कॉम्प्लिकेटेड मॉडल बन जाएगा। वी आर लुकिंग फॉर सिंप्लिसिटी जस्ट लाइक हुक्स लॉ, ठीक है। ओके सर। Now, so one thing is very clear that because we are moving from solids to liquids, अच्छा, और ये सिर्फ लिक्विड के लिए नहीं है, ये सारे फ्लूइड्स के लिए है, गैस के लिए भी ये होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि गैस, और अब आपसे अगर मैं एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछूं, एक तो ये हो गया ना, ये हमने बता दिया था फर्क इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल में, ठीक है। आपके ख्याल में कैन दिस म्यू व्हिच इज विस्कोसिटी be used to distinguish between liquids and solids? Sorry, liquids and gases. आपके ख्याल में लिक्विड्स और गैस को म्यू से कैसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि म्यू किसकी ज्यादा होगी, म्यू लिक्विड का या सॉलिड गैस का? सर लिक्विड का गैस सर। होगी और लिक्विड की कम होगी। गैस देखो ना, इट्स रेजिस्टेंट टू द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है ना, तो वो लिक्विड में ज्यादा होनी चाहिए ना, रेजिस्टेंस लिक्विड ठीक की है ना, ज्यादा है। रेजिस्टेंस है ना, बिल्कुल। So mu basically, viscosity is the analog or analogous to, आपको याद है वहां पे हम क्या नाम यूज करते थे? वो जो था ना इलास्टिक मॉडुलस स्ट्रेस और स्ट्रेन ना, स्ट्रेस और स्ट्रेन में एक कांस्टेंट होता था ना। तो यहाँ पे भी ये कांस्टेंट है, जो यहाँ पे स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है इसका, ये इसको हम स्ट्रेन तो नहीं कह सकते, लेकिन इट्स द रेट ऑफ स्ट्रेन, इट्स द रेट ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। सो हियर इज ए टेबल of viscosities of different substances you are aware of, and also density, क्योंकि आप you expect that if a fluid is dense, yeah, so it should offer more resistance, so you would expect it to be more viscous. लेकिन यहाँ पे इस टेबल को देख के कम से कम क्लियर हो जाएगा कि density is not everything, there are other properties which are actually determining viscosity. तो अब आप यहाँ पे मुझे एक जनरल रूल है कि high density should give you high viscosity. Do you see this rule here in this table? It's not a general rule, but it's still valid for some of them. For example, gasoline की density ज्यादा है, ठीक है, 680 compared to let's say air, ठीक है, तो उसकी viscosity भी ज्यादा है, viscosity भी, लेकिन it's not always true. कोई काउंटर एग्जांपल दे सकते हैं आप मुझे इस टेबल से? सर सी वाटर की डेंसिटी कम है एयर से। सी वाटर की जो डेंसिटी है वो किससे कम है? एयर से। सबसे ज्यादा है सर। ज्यादा है ना, आप क्या बात कर रहे हैं? एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल ये है हीलियम। हीलियम की डेंसिटी उससे कम है ना, एयर से, यस, लेकिन Yes, विस्कोसिटी sir. किसकी ज्यादा है? हीलियम की। सो यहाँ पे वो रूल नहीं मैटर करता ना। दूसरा एग्जाम्पल, कोई और काउंटर एग्जाम्पल दे दे। सर सी वाटर और एयर। सी वाटर और एयर, तो सी जी वाटर सर। की ज्यादा है ना, आप काउंटर तो ना हुआ ना। अब काउंटर एग्जाम्पल दे दें जिसमें डेंसिटी कम हो और विस्कोसिटी फिर भी ज्यादा हो।
ये देखो ना, ये 917 की डेंसिटी सी वाटर से कम है ना, समझ आ गई? ऑयल की जो डेंसिटी है वो 917 है, इट इज लेस देन सी वाटर, एग्रीड? लेकिन विस्कोसिटी किसकी ज्यादा है? समझ आ गई बात? और यू डोंट गेट इट? Sea oil has a smaller density compared to sea water, but it has a larger density compared to sea water. अगर मैं उस यूनिट में देख लूं, बाकी में भी ये होगा। तो इसका क्या मतलब है कि डेंसिटी इज नॉट एवरीथिंग, ठीक है? उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से हो सकता है। आई कैन गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम you know conductivity, yeah? Conductivity, what makes a conductor conductive? कोई बता सकता है मुझे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो क्यों कंडक्टिव होता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बात की बात है ना, वो कंडक्टिव, जब आप किसी चीज को कंडक्टिव कहते हैं, वो करंट ना भी हो आप कह देते हैं क्या ये कंडक्टिव है। उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं ना, समझ आ गई? और इंसुलेटर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन इतने कम होते हैं कि वो करंट आपको नहीं देंगे, ठीक है? तो वहां से ये इंप्रेशन बन सकता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, क्या इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसमें ज्यादा हो वो ज्यादा कंडक्टिव होगा, एग्रीड? लेकिन वहां पे भी आपको आपको अब टेबल इसी तरह देखेंगे, पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, फिर भी वहां पे कुछ मटेरियल ज्यादा कंडक्टिव होते हैं, इवन दो दे हैव लेस डेंसिटी। तो वहां पे इसका मतलब यह है कि कंडक्टिविटी के लिए दो चीजें हैं, एक डेंसिटी है, या और एक और आपने इलेक्ट्रॉनिक्स तो पढ़ी हुई है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में एक और नाम है, उसको कहते हैं मोबिलिटी। डू यू रिमेंबर दैट? यस सर। सो मोबिलिटी एंड डेंसिटी टुगेदर डिटरमिन कंडक्टिविटी, ठीक है? अगर एक मटेरियल ज्यादा कंडक्टिव है डेंसिटी कम होने की वजह से, इसका मतलब है कि उसकी मोबिलिटी फिर ज्यादा है, चाहे वो उसकी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी उसकी ज्यादा है। तो यहाँ पे विस्कोसिटी इज द अपोजिट ऑफ मोबिलिटी, ठीक है? So it is possible that some substance has a large viscosity for some chemical reason. अच्छा, so अब यहाँ पे यूनिट आपको नजर आ रहे हैं, ये यूनिट, इट्स ऑब्वियसली दीज यूनिट्स आर नॉट ऑलवेज कन्वीनियंट। जो आपको ये यूनिट नजर आ रहे हैं ये वाले, सॉरी ये तो डेंसिटी की है, सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड एंड स्लग पर फुट सेकेंड। A more convenient derived units, of course these are standard units, is called poise। आपने नाम सुना होगा poise। So poise क्या है कि जो SI का यूनिट है, you multiply that unit by 0.1, which means it's 1/10 of that, that's called poise। Sometimes poise is also large and we take centipoise, centipoise। तो आपने मेरे ख्याल में poise और centipoise ज्यादा सुना होगा, although they are not SI units, they are derived units। So because we want to complete this chapter as quickly as possible, so I will cover examples, but I'll only give you hints of solving those examples। So if you read this question, what do you see? You see is that, okay, you have a milling machine, and this example will also tell you why liquids are important, even though you have a problem which is only about solids। Yeah, you want to cut, you have a workpiece, you have a cutting tool, this is solid, this is solid, this lead screw is a solid। आपने देखा होगा मशीन शॉप में ये, लेकिन ये सारा काम लिक्विड के बगैर नहीं हो सकता। You do need lubrication। Oil is needed between this workpiece
and this table, otherwise it will heat up so quickly. So you have oil used for lubrication और उसकी viscosity यहाँ पे क्या बना है, कितनी है, 240 centipoise, ठीक है. The two sideways are each of length 40 centimeter and width 8 centimeter. तो देखो ना, ये 40 centimeter इसका लेंथ है, और जब आप इसको साइड से देखेंगे फ्रॉम साइड, तो साइड में आपके पास जो कॉन्टेक्ट एरिया है वो क्या है, 8 सेंटीमीटर इधर है और 8 सेंटीमीटर इधर है. सो यहाँ ये 8 सेंटीमीटर विल आल्सो मल्टीप्लाई 40 सेंटीमीटर, दिस 8 सेंटीमीटर विल आल्सो मल्टीप्लाई दैट 40. सो जो एरिया आपका बनेगा वो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 8, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 8 सेंटीमीटर, एंड इट इज ट्वाइस, क्योंकि ये 2 दफा आ रहा है, वंस ट्वाइस, ठीक है. और जो फोर्स है, जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कोई मोटर लगा हुआ है यहाँ पे, तो उस मोटर की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है 90 न्यूटन मीटर. सो यू नो द फोर्स एज वेल, यू नो द एरिया, यू नो विस्कोसिटी, इट इज गिवन टू यू, ठीक है. और जिस स्पीड से इसने जाना है वो है 15 सेंटीमीटर पर सेकंड, लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर इन 1 सेकंड, ठीक है. So the question here is to calculate the thickness of the oil film, कि कितनी थिकनेस चाहिए ऑयल फिल्म की, यहाँ पे मुझे कितना थिक ऑयल चाहिए लुब्रिकेशन के लिए, बिटवीन द टेबल एंड द गाइडवेज, ठीक है. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 इक्वेशंस है. एक हमारे पास ये इक्वेशन है which is the definition of shear stress, yeah, force divided by area, और दूसरी तरफ हमारे पास if we assume Newtonian fluid, दूसरी तरफ हमारे पास ये इक्वेशन है कि shear stress is equal to viscosity times the rate of deformation V over H. अब इस इक्वेशन में मुझे बताओ अननोन क्या है, इसमें से ही मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, ये वाला, क्योंकि ये T इधर भी है इधर भी है. So I am now writing F over A equals mu times V over H. F is given, A is given, you calculate this, mu is given for 240 centipoise, V is given. The only unknown here is H, and that is exactly what you want to calculate. So you just solve this equation for H. समझ आ गई बात? So it was a simple application of this law, this one. And of course the definition of shear that you know already. और जो यूनिट्स है वो आप बाद में देख लेंगे कि ओके आपको कौन सी यूनिट्स चाहिए, ये वो है. You can deal with the units yourself. Let's move on to the next topic. Before this topic, let me just change the let me go to a blank screen, and I need to tell you why this topic is important and why fluids are important anyway. हमने स्टार्ट में इस कोर्स में 2 चीजों की बात की थी कि in this course we will be focusing mainly on 2 things. Okay. Okay, no, not this one. Okay, so if you remember, we said that this course, mechanics, is about 2 things. It's about forces and definitely moments as well, क्योंकि force होगा तो moment भी हो सकता है, and their action, response, material का response क्या है, object का response क्या है, ठीक है ना, ठीक है, velocity, acceleration, motion, movement, things like that. तो आप force की पर हम बात करते हैं कि force कहाँ से आता है, ठीक है ना. तो आपने मुझे एग्जांपल बताए थे कि यू हैव ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी से फोर्स आ सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्जेस आते हैं, इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स एंड सो ऑन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल. ओके, नाउ you also need to know how to transmit force, how to transmit force. For example, यहाँ पे एक चीज पड़ी हुई है और you want to move it or you want to rotate it, you typically have this rod, yeah,
और यहां से आप इसको रोटेट कर लेते हैं ना, एंड देन यू डिफाइन मोमेंट। तो यहाँ पे आप तो वर्ड यूज कर रहे हैं मोमेंट और टॉर्क, लेकिन बेसिकली इस पीस का क्या रोल है? ये पीस क्या करता है? इट ट्रांसमिट्स द फोर्स। इट, जिस तरह आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टर वायर को यूज करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है या बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे लोड है, सो कंडक्टर का क्या रोल है कि इट ट्रांसमिट्स द फील्ड। तो अब ये जो ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स है, इसके लिए आप सॉलिड यूज कर रहे हैं। क्या? सॉलिड। अब आपने हाइड्रोलिक ब्रेक देखा हुआ है, या पता तो है ना हाइड्रोलिक ब्रेक जो गाड़ियों में यूज होता है? यस सर। तो वहां पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप ड्राइवर हैं, ठीक है, यू प्रेस दी, यू अप्लाई ब्रेक्स, और वो जो गाड़ी में मैकेनिज्म है उसके दरमियान जो ये मीडियम है उसमें क्या है, उसमें ऑफ कोर्स सॉलिड लिंक्स भी है, लेकिन मेनली आप वहां पे किस चीज को यूज कर रहे हैं? लिक्विड। So, इसका मतलब यह है कि लिक्विड कैन आल्सो बी यूज्ड टू ट्रांसमिट फोर्सेस एंड सॉलिड्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू ट्रांसमिट फोर्सेस। दोनों में क्या फर्क है और दोनों के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है? सॉलिड को आप कब प्रेफर करेंगे? सर जब शेप फिक्स्ड हो। सॉलिड ज्यादा ड्यूरेबल होता है ना, सॉलिड को चेंज नहीं करना पड़ता, ठीक है, जब तक वो टूट ना जाए। लिक्विड का क्या एडवांटेज है कंपेयर टू सॉलिड इन ट्रांसमिटिंग फोर्स? सर इट्स मोर फ्लेक्सिबल। One, it is more flexible, so it can reach places to which making a connection of solid, वो उसके लिए बहुत सी मशीनिंग करनी पड़ेगी ना। लिक्विड तो हर जगह पहुंच जाता है। और दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि इसका मास कम होता है, लिक्विड की डेंसिटी कम होती है कंपेयर टू सॉलिड, सो यू सेव मनी एज वेल, ठीक है। सो अब नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ लिक्विड्स जनरेट फोर्सेस, ठीक है। तो सॉलिड में जो फोर्स ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म है वो क्या है? अब आपको मैंने सॉलिड के बारे में बताया था, एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस, याद है आपको? तो इंटरनल फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? दे अपीयर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेसेस, इन द फॉर्म ऑफ shear स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। तो यहां पे जो लिक्विड में वो जो shear स्ट्रेस है या जो नॉर्मल स्ट्रेस है, वो लिक्विड में इट टेक्स द फॉर्म ऑफ क्या? लिक्विड में आप उसको प्रेशर कहेंगे, ठीक है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट्स एक्चुअली हाउ फोर्सेस आर जनरेटेड इन लिक्विड्स। अब आपको वो चीज समझनी है इस टाइम पे कि हमारे पास, लेट्स से यू हैव, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रेशर नाउ, ठीक है। इस पे मैं बाद में आता हूं कि हाउ फोर्स इज जनरेटेड। सो लेट्स से यू हैव दिस सिलेंडर and this is ground, and let's say you are considering only this part, इतना लिक्विड आप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि ऊपर यहां तो लिक्विड है ही नहीं ना। सो इफ यू थिंक ऑफ दिस एज ए फ्री बॉडी, ठीक है, हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, दिस इज योर फ्री बॉडी। सो एक जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है आपका? वेट है। This is external force from the earth, yeah. So do you agree with this expression? Why this expression is true? क्योंकि A times H क्या है? वॉल्यूम। और रो क्या है? मास है, डेंसिटी है। So density times volume will give you mass, yeah, and you multiply mass with G to get force, yeah. So it's rho G H is just an application of mg. यहां तक बात समझ आ गई? यस सर। तो इसका सोर्स क्या हो गया? इसका सोर्स क्या हो जाएगा? ग्रेविटी। अच्छा, ये जो ऊपर से फोर्स आ रहा है P0 टाइम्स A,
ये फोर्स कहां से आ रहा है, बताएं मुझे, सोर्स क्या है इसका? तो जो pouring more liquid, हाँ क्या? सर दोबारा बोले, आवाज थोड़ी सी वो मैं ये कह रहा हूं कि ये फोर्स तो ग्रेविटी का फोर्स है ना जो इस पे लग रहा है, इसका मास होगा, यू मल्टीप्लाई दैट बाय mg एंड यू गेट दिस, या? तो ये जो सर ऊपर से प्रेशर का फोर्स आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? सर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा हाँ, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सोर्स क्या है? है। सर ग्रेविटी है वो भी। ग्रेविटी है वो भी ना, ये भी तो देखो ना, ये भी मास था, एटमॉस्फेयर का अपना मास होता है, वो मास ज्यादा है ना क्योंकि इट गोज ऑल द वे, या ये चूंकि ज्यादा हाइट है इसकी, तो ग्रेविटी दैट्स आल्सो डन बाय अर्थ, ठीक है, लेकिन वो एटमॉस्फेयर का मास है। सो ये दोनों क्या हो गए? दिस इज ग्रेविटी एक्सटर्नल, दिस इज एक्सटर्नल, और दोनों ये अप्लाइड फोर्सेस हो गए क्या? अप्लाइड फोर्सेस। और ये आपकी फ्री बॉडी है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये इज दिस बॉडी मूविंग, ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में? है सर। वो नहीं मूव करता ना। तो अगर ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये है कि दीज टू फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस्ड बाय ए रिएक्टिव फोर्स, एग्रीड? यस। एंड वी नो दैट द इंटेंसिटी ऑफ फोर्स इज प्रेशर, तो एरिया चूंकि इसका एरिया और इसका एरिया सेम है, तो इफ दैट इज पी नॉट ए, पी नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये पॉइंट को मैं 0 कह दूं और इस पॉइंट को मैं 1 कह दूं, दोनों के दरमियान हाइट h है, तो at the pressure at point 1 must be larger. Why? Because I need force balance. Force balance क्या है कि P1A must balance P0A plus प्लस एच no रो rho जी एच। GAH. Yeah. यस। So I can now cancel out A, and this P1 must be more larger than P0 by this amount according to, और ये इस किस बुनियाद पर मैं कह रहा हूं, I am deriving this from static. इक्विलिब्रियम। So this is how pressure increases with depth. इसका फर्क समझ आ गया? यस सर। अच्छा, अब मसला ये है कि ये तो इसका सोर्स हो गया ना, और पास्कल इसका यूनिट है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अब बुयांसी क्या है, वो इस फिगर से आपको समझ नहीं आएगी। इट टेल्स यू वेयर द फोर्स ऑफ बुयांसी कम्स फ्रॉम, ठीक है। इसमें बुयांसी कितनी है मुझे बताओ इस डायग्राम में? If you know what buoyancy means, is there any सर buoyancy in this diagram? buoyancy तो फ्लोटिंग से रिलेटेड नहीं होती? नहीं, वो होती है, लेकिन वो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। सही। वो क्या होता है? अनबैलेंस्ड फोर्स। यहाँ पे तो अनबैलेंस कोई नहीं है, वरना इक्विलिब्रियम ना होता ना। यस सर। समझ आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि buoyancy का फोर्स हमने अभी एक्सप्लोर करना है कि वो आता किधर से है, वो क्यों आता है, ठीक है। So that we'll explain it in this diagram. How pressure leads to the force of buoyancy. Now let's say you have this object, floating object, yeah, inserted in water, ठीक है। तो एक इसका अपना वेट हो गया, एक ये एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। और एक्चुअली वो उसको शायद अनबैलेंस कहना ठीक नहीं है, वो मैं पता नहीं किससे मिक्स कर रहा हूं। अनबैलेंस तब होगा जब वो ज्यादा होगा और वो मूव करना शुरू हो जाएगा ना। बयानसी इसलिए इसको नहीं कहते कि यहाँ पे कोई, आपकी बात ठीक है, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट कोई नहीं है ना, तो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, बिल्कुल, आई एग्री विद दैट। सो लेट्स से यू हैव दिस फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, और इसके लिए अगर आप वही एक्सरसाइज करेंगे, तो मुझे ये बताएं कि इस ऑब्जेक्ट ने कितना वाटर डिस्प्लेस किया है, हाउ मच वाटर हैज इट डिस्प्लेस्ड?
सर जितना इसका एरिया है उतना वाटर इसने डिस्प्लेस किया होगा। बताएं, दोबारा बताएं, एरिया नहीं, वॉल्यूम। ये सर रिपीट। वॉल्यूम, वॉल्यूम। वॉल्यूम, यस सॉरी सर, वॉल्यूम। जितना इसका वॉल्यूम है। तो अब मुझे बताओ कि मास का क्या फॉर्मूला है, मास का, बल्कि मास का नहीं, वेट का। W इक्वल्स टू mg। हाँ, तो अब देखो ना, ये W, ये सिंबल तो W, ये है W। इसको मैं कह सकता हूं W ऑफ द ऑब्जेक्ट, या W ऑफ द, तो W ऑफ द ऑब्जेक्ट का क्या फॉर्मूला होगा? रो जी रो जी वी, या एच। रो रो जी वी हो जाएगा ना, वॉल्यूम। तो ये रो भी ऑब्जेक्ट का हो गया, जी तो अर्थ का है, और वॉल्यूम भी। एग्री विद दिस? बिल्कुल सर। अब यही अगर मैं उस डिस्प्लेस्ड वाटर का कर दूं, तो W ऑफ वाटर दैट हैज बीन डिस्प्लेस्ड, या, और मैं यहां पे लिख दूं DW, D मीन डिस्प्लेस्ड एंड W मीन वाटर। तो आई विल स्टिल अप्लाई रो जी वी, या, तो G तो चेंज नहीं यस। होगा, G यूनिवर्सल है। यहाँ पे डेंसिटी की जगह क्या आ जाएगा? वाटर, या, रो चेंज हो जाएगा सर वो डेंसिटी डिस्प्लेस्ड का। वाटर का हो जाएगा ना। यस। और ये वॉल्यूम और वही वॉल्यूम रहेगा, भी। क्योंकि वो उतना ही वॉल्यूम है। ये अपने वॉल्यूम से ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता ना, या कर यस सर। सकता है? नहीं सर, वो उतना ही होगा जितना उसका जितनी जगह वॉल्यूम है। इसने घेरी है उतनी ही को ना, तो ये वी ऑब्जेक्ट ये सेम है ना। ठीक। अच्छा, अब ये वेट क्या है? ये वेट जो है ना, ये वो पानी। अच्छा, अब इधर उधर पानी है, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है। अब इस डायग्राम में एक्स्ट्रा वाटर नहीं था, ठीक है, यही वाटर था। अब आपने ये वाटर डिस्प्लेस किया है, तो वो इधर उधर से जो वाटर है वो क्या है? दैट वाटर, आपको पता है कि वाटर का प्रेशर होता है, वाटर का, तो दैट वाटर विल ट्राई टू पुल इट अपवर्ड, push it upward, ठीक है, and इंटरनल प्रेशर सर। that is what we mean by buoyancy। तो जो buoyancy का फोर्स है, इसका चूंकि दिस इज द सोर्स, मैं इसलिए सोर्स की बात कर रहा हूं, वो डिस्प्लेस्ड वाटर अगर यहां पे वो होता तो ये कोई अनबैलेंस फोर्स ना होता। अनबैलेंस इन द सेंस में ये वेट उसको बैलेंस कर सकता है, ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये तो इसका वेट है ना। लेकिन ये जो बायंसी है, ये उस डिस्प्लेस्ड वाटर जो आपने डिस्प्लेस किया हुआ है, दैट वाटर विल डेफिनेटली पुश इट अपवर्ड। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, वही फॉर्मूला है जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, इधर देखिए, वी ऑब्जेक्ट, जी, और रो फ्लूइड। सो what is the definition of buoyancy force? It is the weight of, say it with me, it is the weight of the water that has been displaced, okay, क्योंकि वही पानी जो है ना, वो that will push you upward। सो तो बेसिकली अब, सर सॉरी, जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा उतना ज्यादा बॉयंसी ज्यादा होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर तो इसीलिए ये शिप्स बड़े बड़े बनाते हैं ना। सो इसका मतलब है कि वॉल्यूम, वॉल्यूम सिर्फ जो है ना, वॉल्यूम इसलिए ज्यादा चाहिए ताकि आप फ्लूइड की, क्योंकि फ्लूइड की डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती ना। डेंसिटी किसकी ज्यादा है, इस ऑब्जेक्ट की या वाटर की? वाटर की सर। नहीं, अब आमतौर पे अगर आप शिप्स की बात करते हैं तो शिप्स नहीं तो, अगर आप हैवी चीज मैं को उसकी वो पानी में चला फ्लोट करना चाहते हैं, तो अगर वो डेंस है, तो इसका मतलब यह है कि आपको फिर वॉल्यूम ज्यादा चाहिए ना। और अगर वो लाइट है तो फिर वॉल्यूम कम भी हो सर तो ये हाँ,
ये चीज समझ नहीं आई सर। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे पानी पे दो चीजें आपने फ्लोट करानी है ना, एक है डेंसर देन वाटर और एक है लाइटर देन वाटर। समझ आ गई? इसकी डेंसिटी यस वाटर से ज्यादा है और इसकी डेंसिटी वाटर से यस सर कम है। तो अगर इसकी अपनी डेंसिटी वाटर से कम है तो वाटर चूंकि डेंस है तो उसका डिस्प्लेस्ड का वॉल्यूम कम भी होगा ना, तो भी ये फोर्स इनफ होगा। ये डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि सोर्स ऑफ बॉयंसी इज वाटर नॉट द ऑब्जेक्ट। वाटर का वेट है ना ये, डेंसिटी तो वाटर की है ना। समझ आ गई? दिस इसका अपना जो है ना वेट इतना नहीं ठीक होगा है जितना सर। ये बॉयंसी होगा। ये ठीक मैं है सर, समझ फ्लोट आ गया। सरफेस की बात नहीं कर रही, मैं अंदर बात कर रहा हूँ। लेट से ये यहाँ पे कोई फ्लोट कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर डेंसर है तो डेंसर में क्या है कि वाटर की चूंकि रो कम है उसका, तो इसको बैलेंस, दोनों का वॉल्यूम सेम है, इसको बैलेंस तब करेगा जब वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसने इस फोर्स को बैलेंस करना है। लेट मी जस्ट राइट एन एक्सप्रेशन फॉर दैट डब्ल्यू एज वेल, ताकि आपको समझ आ जाएगी। यहां पे मैं डब्ल्यू ऑब्जेक्ट लिखना चाहता हूं, तो वो क्या हो जाएगा, रो ऑब्जेक्ट जी वी ऑब्जेक्ट। इन दोनों में कौन सा ज्यादा होगा? आवाज कट। आवाज कट रही है? ठीक है सर अब ठीक है। मैं कह रहा हूं यहां पे जिसकी अगर फ्लूइड की डेंसिटी ऑब्जेक्ट से ज्यादा है तब ये बॉयंसी फोर्स ज्यादा होगा ना। यस सर सही है ना? So, I mean, my focus here was only to show you where the force comes from. So, इसके sources मैं बताऊं, इसके sources क्या हैं? वाटर का प्रेशर है, ठीक है, और द फैक्ट दैट इट हैज बीन डिस्प्लेस्ड। तो आप डिस्प्लेस वाटर को करेंगे तो वाटर जो है ना सराउंडिंग से आपका प्रेशर जो है ना एक्स्ट्रा वाटर वो कर देगा। अच्छा, यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट इन दिस डायग्राम एज वेल। अच्छा, मैंने ये जो इक्वेशन लिखी है ना, ये वाली, इसकी रीजनिंग मैंने क्या दी है? इक्विलिब्रियम वाली ना। अब अगर इफ यू वांट अनदर रीजन कि इक्विलिब्रियम तो मुझे पता है, ये तो मैथमेटिक्स है, तो इसकी जो फिजिकल रीजन वो क्या है, वो बताएं मुझे। हम्म जी सर। फिजिकल रीजन इसकी आप क्या बताएंगे मुझे? फिजिकल रीजन सर की प्रेशर सर। देखो ना, ये आइसोलेशन में नहीं है ना, इसके आसपास पानी है ना, इधर भी वो, इधर सॉरी फ्लूइड ना, लेट्स से फ्लूइड है कोई, इधर भी फ्लूइड है, इधर भी फ्लूइड है, इधर भी फ्लूइड है। वो फ्लूइड इसको क्या करेगा? प्रेस करेगा वो सर, प्रेस पुश करेगा ना, करेगा। ठीक है ना। और ये उसको उनको प्रेस कर सकता है, यस, पुश करेगा। ये इसको कर सकता है, ये इनको काउंटर नहीं कर सकता, ये एक्स्ट्रा है, तो ये उसको बैलेंस नहीं कर सकता। समझ आ गई? So you need ठीक है। you need to think about the sources as well. Although in this course we are not going into that source, ये material उस तरह का material का course नहीं है, ठीक है। So let's move on to an example. इस example में you let's say you have commercial passenger aircraft that is loaded to its maximum fuel rating of 90,000 liters. So you know the volume, yeah? Fuel जी का volume, ठीक है? Aircraft का volume नहीं है। By using density of 840 kilogram per cubic meter of jet fuel, density आपको given होगी, you know g the gravitational constant calculates the fuel's weight। तो ये तो fuel का formula हमने लगा दिया weight का, rho gv, not rocket science, very easy, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे? यस Intended सर। for rescue missions in the event of a submarine accident,
the deep submergence rescue vehicle can dive to a maximum depth of 50,000. Do you know the height of 50,000? Depth, sorry, height नहीं depth. So इतनी depth है ये. 5,000 feet है सर. हाँ? 5,000. Sorry, 5,000. 5,000 नहीं है. ठीक है? In the ocean. Now, in dimensions of PSI. अच्छा, ये dimensions of PSI का मतलब ये है कि यूनिट्स आपने बाद में ठीक करने हैं. जो गिवन है जरूरी नहीं कि वो PSI में आ जाए, लेकिन वो मैं कवर नहीं कर रहा. ठीक है? By how much greater is the water's pressure at depth than the ocean's surface? अब इसका मतलब ये है कि if this is the ocean's surface and this is the location where you have depth, और यहाँ पे आपका जो जो मिशन है वो यहाँ पे है. ठीक है? जो व्हीकल है वो यहाँ तक आया हुआ है. तो अब ये H हो गया. अब आपको पता है कि how to convert that H to pressure. So rho GH is the difference of pressure. ठीक है? अगर ये इसको आप P naught कहेंगे, इसको आप P1 कहेंगे, तो delta P is P1 minus P naught, and that is simply rho GH. That's exactly what we covered about. ठीक है? Rho G1 minus H2. Rho G या H1 minus H0. Rho G H0 minus H. No, H1 Yes. minus H0. अगर आप इसको Yes, जो हाँ, depth depth जो deeper है अगर वो इसको पहले डेप्थ कहेंगे तो ये H1 हो जाएगा और ये H0 हो जाएगा ना. तो H1 minus H0 हो जाएगा. और अगर आप इसको हाइट करते हैं सी लेवल से, आई नो व्हाट यू वांट, यू आर ट्राइंग टू से, अगर ये आपका एरो हो तो फिर H0 minus H1 होगा. इट डिपेंड्स कि आपका रेफरेंस क्या है ना. सो नाउ प्रेशर एंड बायोन्सी फोर्स. अच्छा, ये मैंने सॉरी ये टाइटल गलत है. ठीक है? तो इस टाइटल को ठीक कर दें. ये टाइटल ये नहीं होना चाहिए. ठीक है? ये फ्लो है बेसिकली. फ्लो. अब फ्लो को आप कैसे जज करते हैं? लेट्स से दीज लाइंस रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ फ्लूइड एंड दीज लाइंस आल्सो रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ फ्लूइड. ओके, ये अजान हो जाए इसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा. लेट मी जस्ट पॉज दैट. अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ बिफोर आई गेट टू दिस टॉपिक, कि क्या आई टोल्ड यू, लेट मी गो बैक टू वन स्लाइड. हमने जब ये डिस्कशन की थी तो आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछना था, ये वाली. ठीक है? ये डायग्राम जहन में रख ले. ठीक है? एंड नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू समथिंग. That when you have a constant force, yeah, constant force, and you have a rigid body or a particle, let's say particle है, constant force है. So what is the consequence of this? Let's say this is an unbalanced force. इसका एक रिस्पॉन्स क्या होगा इस rigid body का? Constant what? बताएं. The response of a rigid body to a constant force is constant deformation. Movement sir, movement. constant acceleration. ये डिफॉर्मेशन बॉडी, हम रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं. ठीक है? वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक. तो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है. कांस्टेंट, इसका मतलब है कि वेलोसिटी हैज टू कीप इंक्रीजिंग, या विद टाइम. ये बात समझ आ गई? Yes sir, न्यूटन लॉ. अच्छा, अब आपने इलेक्ट्रिक सर्किट्स पढ़े हैं और ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है. ठीक है? तो उसमें इस V का मतलब ये है कि यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है. अब डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता कि फोर्स क्या है, क्योंकि इस V का अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस वहां पे फोर्स होता है. और I का मतलब ये है कि क्या कांस्टेंट है? वेलोसिटी. है? Yes. तो ये तो मैच नहीं हो रहा. फिर यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्यों नहीं हो रही? क्या रीजन है इसके आपके ख्याल में?
ये मॉडल, ये जो मैंने यहाँ पे बताया है, ये कहाँ पे ट्रू होता है? फ्री सर रिजिड बॉडी में ट्रू होता है, जहाँ पे नहीं, फ्री सिर्फ रिजिड बॉडी मूविंग नहीं, इलेक्ट्रॉन रिजिड नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी तो रिजिड बॉडीज है ना। ये फ्री स्पेस में ये वैलिड है, एम्प्टी स्पेस। एंड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, ये तो अनबैलेंस्ड फोर्स है ना। एक्सटर्नल फोर्स है भी तो आप उससे ये नेट फोर्स है ना, ये उसका नेट है। यहाँ पे ये फ्री नहीं है, यहाँ पे तो बहुत सारे कोलिजन्स और बहुत सारा गन चला हुआ मचा होता है ना। इट्स लाइक गोइंग इन अ क्राउड, या ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो रेजिस्टेंस है वो शो कर रहा है वो यहाँ के इफेक्ट को, जो फ्रिक्शंस है ना। आपने एक फ्रिक्शन वो पढ़ा है जो आप इससे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना, इफ अप्लाइड माइनस इफ फ्रिक्शन, या। और चूंकि वो फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है तो आपके पास ये नेट भी कांस्टेंट होता है। जो इस तरह यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन वेलोसिटी के साथ चेंज होता है, एंड you ultimately you get a constant velocity only, you cannot get constant acceleration, ठीक है। तो यहाँ से भी हम अगर रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं तो हमारी फिर भी तो मैं तो कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, कंडक्टर में रेजिस्टेंस जीरो तो कभी भी नहीं होगी ना राइट। वैसे ये हाइपोथेटिकली फिर आप उसकी ये आप उसकी सुपर कंडक्टर की बात कर रहे हैं ना। सही। सुपर यस सर। कंडक्टर में वो बात बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मैं नॉर्मल कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक। सुपर कंडक्टर के लिए तो ओम्स लॉ, फिर उसमें आर जीरो हो जाएगा ना, वो और चीज है फिर, ठीक है। वो तो यहाँ पे भी आप m इज इक्वल टू जीरो कर दे तो पता नहीं क्या किस लिए पक जाएगी फिर, ठीक है। तो ये जहन में रखें, you have to keep this in mind. So you need to understand कि what is it that gives you that constant velocity। देखो ना यहाँ पे भी वो चीज आ रही है ना, यहाँ पे भी फोर्स कांस्टेंट है, हा? और वेलोसिटी इसकी, ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई ना फिर। तो आप पूछ सकते थे यहाँ पे कि ये कांस्टेंट फोर्स में तो वेलोसिटी इंक्रीज क्यों नहीं हो रही है, उसकी वहां पे है, यहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी विल लीड टू फ्रिक्शन। समझ आ गई? So here we have two types of phenomena. So you have और इसको आप टेस्ट कैसे करते हैं कि you imagine a sphere inside the fluid here and here। तो अगर ये तमीज से fluid flow है तो ये it's what we call it laminar। laminar, आपने लेमिनेशन नाम सुना हुआ है? लेमिनेशंस वो लेयर्स होते हैं ना इसमें। ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर जो अपने ईएमएस नहीं पढ़ा हुआ ना अभी, ईएमएस कोर्स पढ़ा हुआ है ये? नहीं सर। अच्छा, तो ट्रांसफार्मर्स सब के पढ़ जो रहा है लेमिनेशन। ट्रांसफार्मर लेमिनेशन नाम सुने होंगे आपने। हम पढ़ रहे हैं मैं सभी। यस अच्छा, सर, ईएमएस पढ़ रहे हैं। सो हैव लेमिनेशन। यू हर्ड दिस वर्ड लेमिनेशंस? यस सर। तो अब ये लेमिनेशंस की तरह बिल्कुल ना, ये फ्लूइड की लेयर्स है ना। और यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, ये क्या है? ये swirls टाइप्स की चीजें है ना, ये लेमिनेशन। तो इसको टर्बुलेंस कहते हैं क्या? So you have turbulent, this is an example of turbulent flow, and this is an example of laminar flow। अब ये क्यों होता है, इसकी मैं बेसिक एक रीजन बता दूं, फिर मैं इस पे आ जाता हूं, रेनॉल्ड नंबर पे बाद में आता हूं मैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दो फिनोमेना बता दिए ना। एक ये है कि इफ यू जस्ट फोकस ऑन मास ओनली, rigid body mass, so you have mass times acceleration and you things would like to accelerate, तो इसको कहते हैं inertial forces। what आपने नाम सुना होगा, inertial forces। ये inertial यस force है। सर। इसका मतलब ये है कि every molecule, all the molecules would tend to go that way। तो इसलिए ये आपको यहाँ पे ये चीज डोमिनेट होती हुई नजर आ रही है। बाहर तो नहीं जा सकती, लेकिन वो इधर ये अजीब से कर्ल्स बना रहे हैं। दूसरा इसका अपोजिट मैंने क्या फिनोमेना बताया, क्या? विस्कस फोर्सेस और फ्रिक्शन फोर्सेस।
और बाय फ्रिक्शन आई मीन फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है, सॉलिड फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा, सॉलिड फ्रिक्शन तो कांस्टेंट होता है ना, ये फ्लूइड फ्रिक्शन चेंज होता है वेलोसिटी के साथ। तो विस्कस फ्रिक्शन विल लीड टू कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट, and inertial forces will lead to acceleration, it will lead to। तो अब आपने देखना है कि आपके फ्लो में इन दोनों में से कौन सा डोमिनेंट है, inertial forces डोमिनेंट है या viscous forces डोमिनेंट है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे कौन से फोर्सेस डोमिनेंट है, इफ यू अंडरस्टूड माय पॉइंट। अगर इन दोनों में मुकाबला है inertial और viscous में, कौन सा डोमिनेंट है यहाँ पे? डोमिनेंट का मतलब यह है कि मेजर फोर्स वो है, दूसरा नेग्लिजिबल है। बताएं। यहाँ पे विस्कस फोर्स डोमिनेंट है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइंस का मतलब ये है कि कांस्टेंट स्टेडी वेलोसिटी है, ये दे आर इंडिकेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन की तरफ जा रहे हैं, वो जा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आपने आपने अगर इसको समझना है ना, आप क्राउड में जाएं, क्राउड में लेट से दो किस्म के लोग होते हैं ना, एक क्राउड में जा रहे, एक आराम से जा रहे होते तो वो दे विल लुक लाइक दिस, और जो भागना चाहते हैं वो क्राउड से फिर भी बाहर नहीं जा सकते, लेकिन आप वो पफ बोर्ड डालते हैं वहां पे, ठीक है, so they will jump here and there and there। so यहाँ पे inertial forces dominate कर रहे हैं और यहाँ पे viscous force dominate कर रहे हैं, ठीक है, समझ आ गई बात? Yes. तो अब ये रेनॉल्ड नंबर सिविल इंजीनियर्स और मैकेनिकल इंजीनियर ने दे केम अप विद दिस क्वांटिटी, इट्स कॉल्ड RE, रेनॉल्ड नंबर। एंड इफ यू लुक केयरफुली इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है आपको, ये क्या है, विस्कोसिटी। सो डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स द विस्कस फोर्सेस, ठीक है, और ऊपर क्या है, डेंसिटी है और वेलोसिटी है, दैट रिप्रेजेंट द इनर्शियल फोर्सेस, ठीक है। So if this number is large, if this number is very large compared to 1, तो इसका मतलब क्या है कि viscous force dominant नहीं है, inertial forces dominant नहीं, you should expect something like that, you should expect turbulent flows। and if it is very small, या nearly 1 or less than 1, तो फिर क्या है, even less than 1 ना भी हो but बहुत ज्यादा ना हो। typical value ये है कि if it is larger than 2000 तो डेफिनेटली टर्बुलेंट है, और लेस देन 2000 काफी रीजनेबल, 1000 100 तो ये फिर लेमिनर है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज दिस L? दिस L इज नॉट नेसेसरली द लेंथ, इट इज सम कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, ठीक है। वो इस केस में इसका डायमीटर हो सकता है, कुछ केस में कुछ और हो सकता है, ठीक है। एंड इट्स अ बैलेंस बिटवीन इनर्शियल एंड विस्कस फोर्सेस। सो रेनॉल्ड नंबर will tell you whether the flow is laminar or turbulent। समझ आ गई ये बात? We'll use Yes. Reynolds number in the following slides। Now let's say we want to calculate the Reynolds number for this example, for the following situations। Let's say part A पे focus करते हैं। Part A में you have a Winchester bullet, और ये बुलेट के जो स्पेसिफिकेशन है 0.30 मीन्स के डायमीटर है, ठीक है। This means that the diameter in part A is 0.30, मेरे ख्याल में इंच है शायद, या इंच हो गया या सेंटीमीटर हो गया, इसको आप चेक कर लें। ये 3 इंचेस में होगा और 32 मिलीमीटर्स में उसकी लेंथ होगी। अच्छा, उसकी लेंथ होगी, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बुलेट में आप अच्छा, वो बुलेट में जो ये लेंथ है, ये डायमीटर है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। रिमेंबर, रेनॉल्ड में जो लेंथ है वो जरूरी नहीं को ऑब्जेक्ट का लेंथ हो, वो डायमेंशन है जो इंपॉर्टेंट है टर्बुलेंस के लिए। तो टर्बुलेंस के लिए उसका लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका डायमीटर इंपॉर्टेंट है, तो L will be replaced with D, ठीक है। leaves the muzzle of a rifle at this much velocity, तो आपको पार्ट A में वेलोसिटी भी गिवन हो गया, ठीक है, 240 फीट पर सेकंड, और डेंसिटी आपको पता है कि
डेंसिटी भी आप किसी टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट मी सी कि वो डेंसिटी किधर है, ये टेबल में देखना चाहता हूं ना। ऑयल, एयर, हीलियम, ये सिर्फ फ्रेश वाटर है इसमें, क्या है ब्रदर? हीलियम के नीचे फ्रेश वाटर है सर। अच्छा, नहीं तो वहां पे क्या था? वहां भी फ्रेश वाटर है सर, फ्रेश वाटर फ्लोज नहीं थ्रू नहीं, 1 सेंटीमीटर। ये तो बी है ना। यस सर। नहीं, हम पार्ट ए की बात कर रहे हैं ना, हम पार्ट ए की बात कर रहे हैं। तो पार्ट ए में फ्लूइड क्या है, कौन सा है? पार्ट बी को अपना छोड़िए, हम पार्ट ए इन ईच सिचुएशन ना, इन द फॉलोइंग अच्छा, सिचुएशन पार्ट ए में हमारे पास एयर है ना सर। एयर है ना, तो आप यहाँ पे एयर की डेंसिटी लगाएंगे ना फॉर्मूले में। उसमें टेबल में पहली एयर थी ना सर, हाँ, टेबल में पहली वाली एयर थी। पहले वाली एयर थी, तो आप उधर से एयर कैलकुलेट, एयर की डेंसिटी उठाएंगे उधर से, और विस्कोसिटी भी आप उधर से उठाएंगे, ठीक है। यस। तो आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रेनॉल्ड नंबर में आपको ये दोनों चीजें चाहिए ना, यू नीड विस्कोसिटी एंड द डेंसिटी, डेंसिटी। ये दोनों आपको टेबल 6.1 से नजर आ जाएंगे। V इज गिवन, ठीक है। इन और ईच जो पार्ट। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है वो डायमीटर आप यूज करेंगे, क्योंकि जो आप देखें ना, एयर में एक बुलेट जाता है, आप खुद कॉमन सेंस लगाएं, तो एयर के साथ इंटरेक्ट उसका क्रॉस सेक्शन करता है या उसका लेंथ करता है? उसका क्रॉस सेक्शन करता है सर। हाँ, तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आपने लिखनी है, ठीक है ना, लेंथ विच इज रेलेवेंट टू टर्बुलेंस एंड लेमिनर, ठीक है। और बाकी वेलोसिटी तो उसमें गिवन है। इसी तरह पार्ट बी में भी आपको पता है फ्रेश वाटर डायमीटर गिवन है, स्पीड गिवन है, सिमिलरली ऑयल फ्लोज, तो ये आप सारे कर सकते हैं। इसमें जो चीज मुश्किल है वो ये है कि जो पार्ट डी है, पार्ट डी में उसने जो स्पीड है वो दी है नॉट्स में, KNOTS नॉट्स, और उसने बता दिया कि 1 नॉट इज इक्वल टू 1.15 माइल्स पर आवर, तो यू नो व्हाट दैट मींस। सर तो कन्वर्जन तो आसान है फिर। कन्वर्जन तो आप कर लेंगे ना, इसलिए हम इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस ये है कि आपने स्कीम क्या उठानी है, ठीक है। सही। So let's go to the other topic, and that is the fluid flow in pipes. Pipe में जो fluid है वो by now you should know that when you think of a fluid as a body, as a free body, so you should identify the external forces. They come from pressure. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर इस बॉडी के लेफ्ट साइड पे प्रेशर हाई है और राइट साइड पे प्रेशर क्या है, लो है, तो ओवरऑल इस पे क्या होगा, इस डायरेक्शन में इस पे एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स होगा। दैट फोर्स विल बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रेशर, डेल्टा P टाइम्स एरिया। एग्रीड? सो द फोर्स कम्स फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ प्रेशर। अगर ये प्रेशर सेम है दोनों का, ये प्रेशर और ये प्रेशर सेम है, तो डेल्टा P क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, देयर इज नो फोर्स, ठीक है। And because it is a fluid and it has to flow in a pipe, तो पाइप के सरफेस के साथ इसका इंटरेक्शन होगा, वहां पे क्या फील करेगा ये, shear stress, ठीक है। तो इन सब का कॉन्सिक्वेंस ये है कि यू नीड अ प्रेशर ड्रॉप एंड द वेलोसिटी। अब देखो ना, वहां पे हमने क्या देखा कि ये चूंकि ये पाइप चूंकि मूव नहीं कर सकता, हाँ, और ये पाइप भी मूव नहीं करेगा, तो वो नो स्लिप कंडीशन में यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। एग्रीड? Let's go back to that slide so that you know what I'm trying to tell you. इधर याद है आपको ना, this was a moving plate and this was the constant part plate। तो जो constant है उसके साथ चूंकि नो स्लिप कंडीशन हम assume कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, जीरो है, और वेलोसिटी वहां मैक्सिमम है जिसके साथ मूविंग पार्ट है। अब पाइप में दोनों साइड्स क्या हैं, दोनों साइड नहीं बल्कि पूरा डायमीटर, आप इसको अगर साइड पे देख लेना तो ये थ्रू आउट यहाँ पे जो ये एरिया है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। सेंटर में चूंकि प्रेशर है, प्रेशर डिफरेंस विल मूव द सेंटर
एट मैक्सिमम स्पीड, और ये बाकी में ये उसी तरह का लिनियर ग्राफ बनेगा. दिस इज व्हाट वी मीन बाय वेलोसिटी प्रोफाइल और वेलोसिटी distribution. For simplicity we assume laminar. Laminar का मतलब ये है कि Reynolds number will be less than 2000. Okay, 2000 या 20,000, I don't remember कि वो आप चेक करें इस बुक में, इसको शायद 2000 है या. और can you see that you have a maximum velocity which is this one, yeah? और ये फार्मूला आपको क्या देगा? 1 minus small r squared. Small r is this and large r is, स्मॉल r का मतलब ये है कि किस पॉइंट पे आप कैलकुलेशन कर रहे हैं. लेट्स से आप कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे r ये हो जाएगा और कैपिटल R फिक्स डायमीटर है. दिस विल गिव यू दिस शेप, ठीक है. एंड वेलोसिटी, द मैक्सिमम वेलोसिटी, don't ask me to derive this because we are not going into details. This maximum velocity will depend on the pressure difference. Makes sense. More pressure difference means more velocity. It will depend on the square of diameter, ठीक है. और viscosity डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और लेंथ ऑफ पाइप के लेंथ कितना है, और ये 16 का भी कोई होगा, ठीक है ना. सो now have you heard this name volumetric flow? Volumetric flow rate is the rate of flow of volume. So you have delta V volume, delta T. अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा सोच लेना तो it can be shown to be area times the average velocity, क्योंकि average velocity में delta T आ जाएगा, और volume is area times length. So area times length, length divided by delta T is average velocity, ठीक है. And if it turns out that the average velocity in most cases for laminar distribution is half of the maximum, and if you combine these different things you get a nice formula for velocity, ठीक है ना. Don't think too much about this. You can always look refer to these formulas if you need. तो जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि वेलोसिटी का प्रोफाइल ये होगा. ये नहीं है कि सारे लेयर्स सेम वेलोसिटी से जाएंगे, ओनली सेंटर पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ठीक है. आपको याद है जिस तरह ये इट इज समथिंग सिमिलर टू स्किन इफेक्ट. आपको स्किन इफेक्ट फिजिक्स में याद होगा ना? नहीं है, स्किन इफेक्ट आपने नहीं पढ़ा होगा, सॉरी. एंड दिस इज एज एन एग्जांपल where you are given speed, fuel economy. Economy is in miles per gallon, कि आप 1 गैलन में कितना माइल जा सकते हैं. So if we want to calculate the discharge is volume per time, and you can write this as, okay, volume per time को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, delta x is the length covered, and if you think about this, delta x over delta t is the velocity, and delta x over delta v, the length covered or distance covered per unit of fuel, per unit volume of fuel. That is what we mean by efficiency. और बाकी मेरे ख्याल में वो वही फार्मूला है जो पिछले स्लाइड्स पे यूज हो गए हैं. So you can actually look at this scheme and you can even solve this yourself. Drag force. By now you should be very clear that if an object is moving through some fluid, the interaction at the surface and only the frontal area, क्योंकि फ्रंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उधर ये इंटरेक्ट करता है, उसके साथ जो ड्रैग फोर्स इस पे अप्लाई होगा, ड्रैग फोर्स, that will be proportional to the square of velocity, frontal area, density of the fluid, and some coefficient of drag. Some coefficient of drag. It will depend on shape, the material you use for the wings and so on, ठीक है ना. तो ड्रैग फोर्स इज वेरी कॉमन. आप जब मोटरवे पे जा रहे होते हैं ना, तो आपको पता होता है कि वो एयर आप पे एक ड्रैग फोर्स अप्लाई कर रहा होता है. दैट्स व्हाई, एंड दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी in general. So that is why you cannot accelerate, ठीक है ना. You have different drag coefficients and frontal areas. तो अगर आपको drag coefficient पता है और frontal area पता है, तो you can calculate the force. Sometimes you simplify
So you assume a smooth sphere and you assume laminar flow. Laminar flow अगर आप assume कर सकते हैं, so the drag coefficient will vary with Reynolds number in a straight line with this formula. And उस assumption में, for example, this straight line और laminar, तो उसमें वो जो पिछले स्लाइड वाला जो फार्मूला था ना स्क्वायर वाला, that simplifies. देखो ना उसमें स्क्वायर तो है वेलोसिटी का, लेकिन इट्स ऑल्सो मल्टीप्लाइज CD. अब CD in this simplified assumption for small Reynolds number is proportional to 1 over RE. 1 over RE में if you remember RE के फॉर्मूले में वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी. सो अगर आप 1 over RE करेंगे तो ये वेलोसिटी और ये डेंसिटी और ये D डिनोमिनेटर में आ जाएंगी. This velocity will cancel out the square of this velocity, and at the end your formula will be simpler. So drag force when you are slow and the flow is laminar will be proportional to V. तो ये आपने नोट किया होगा कि जब आप जाते हैं ना मोटरवे पे, आप स्लो स्पीड पे जाते हैं तो ड्रैग इतना नहीं होता ज्यादा. उसकी वजह यह है कि वो जो ड्रैग फोर्स है वो लिनियरली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है. बट इफ यू मूव फास्ट, फास्ट में आप फिर इस रीजन में आ जाते हैं एंड देन यू मस्ट यूज द स्क्वायर. आपने नोट किया है ये वैसे बाय द वे? यस सर. कि आप हाईवे पे बहुत ज्यादा स्पीड पे जाते हैं तभी वो ड्रैग ज्यादा होता है. सो इट स्विचेस फ्रॉम linear velocity to square of velocity. अब आपको समझ आ जाएगी. रिवर्स स्विंग आपने देखा होगा ना कि रिवर्स स्विंग सिर्फ फास्ट बॉलर्स क्यों कर सकते हैं, वो स्लो बॉलर क्यों नहीं कर सकते? सर वो जब फास्ट हो जाता है तो फिर वो ड्रैग जो है वो स्क्वायर हो जाता है. हाँ, वो यू नीड टू यूज दैट स्क्वायर रिलेशनशिप. और वहां पे उसी तरह अब आपको समझ आ जाएगी इस डायग्राम की, ये जो कर्ल्स है ना आपको कर्ल्स बन जाते हैं वो. दिस इज व्हाट हैपेंस इन रिवर्स स्विंग. और स्पिनर के केस में या मीडियम प्रेशर के केस में ये होगा. सो इट्स ऑल a transfer from laminar to turbulent because of high velocity. और यहाँ पे भी वही है कि इसने एक केस दिया हुआ है, ठीक है. एक केस में he wants you to use this approximation. Remember this plot, एक बहुत जरूरी है, ये प्लॉट, this plot, even this region and this region, it is for the smooth sphere, ठीक है. ये एक्चुअल डेटा नहीं है, it's not actual data. एक्चुअल डेटा ये है, ये एक्सपेरिमेंट से जो मिला हुआ है. So in this example he wants you to use that plot. तो वहां पे हमें देखा है कि वो जो रेनॉल्ड नंबर है वो ऐसा नहीं है कि आप वो लीनियर रिलेशनशिप यूज करो, वो यहाँ पे नहीं है. इट इज समवेयर हियर, सो वी स्टिल यूज दिस प्लॉट, ठीक है. बट इन पार्ट बी वी वांट टू यूज द एक्चुअल कोएफिशिएंट्स. इन बोथ केसेस द फार्मूला विल बी स्क्वायर. एंड दिस एग्जांपल इज अबाउट अ साइक्लिस्ट. So a cyclist can generate power in this range. So if you assume that he is producing maximum power, power is the product of force and velocity. So this force, this velocity, force. So the power, the cyclist must balance this drag force. Drag force का formula आपको पता चल गया है अब. So by combining this formula with the formula for power, which is force times velocity, you can solve this problem as well. The last force we consider is the lift force. अब एयरप्लेन जो सर्फेसेस मूव कराता है एयर के साथ, तो उसका अल्टीमेट जो इफेक्ट होता है वो लिफ्ट फोर्स होता है. एंड दैट लिफ्ट फोर्स इज गोइंग टू बैलेंस द वेट. और उसका फॉर्मूला भी, यू कैन फॉरगेट अबाउट दिस, उसका फार्मूला भी ऐसा ही है. देखो ना, इट टेक्स द सेम फॉर्म, रो ए वी स्क्वायर्ड. सिर्फ ये है कि वहां पे ड्रैग कोएफिशिएंट था, यहाँ पे लिफ्ट कोएफिशिएंट है. लिफ्ट कोएफिशिएंट एंगल ऑफ अटैक पे डिपेंड करता है और इट लुक्स लाइक दैट. एंगल ऑफ अटैक क्या है ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि
एयरक्राफ्ट वाले जो है ना वो ये विंग्स को ऊपर नीचे क्यों करते हैं, क्योंकि दिस एंगल ऑफ अटैक विल टेल यू हाउ मच फोर्स यू कैन जनरेट. So if you want to generate more force, you need to increase the angle of attack. समझ आ गई बात? And if you want to decrease the force, less angle of attack. I think that was all for today's lecture. In the next lecture, we will not cover exercise end chapter problems for this chapter because we only wanted these concepts. आज का जो summary है वो ये है कि we understood the different types of forces that are generated by fluids, क्योंकि एयर का भी तो है ना. तो उसमें हमने क्या क्या देखे हैं, अभी तक हमने कौन कौन से सीखे हैं? buoyant force, buoyancy, drag force, लिफ्ट फोर्स एंड लेफ्ट फोर्स. और इन सब के पीछे कौन सा फिनोमेना है? प्रेशर इज मेन थिंग, क्योंकि प्रेशर इज द इंटेंसिटी ऑफ फोर्स एट ईच पॉइंट. और जब आप लिक्विड को यूज करते हैं वो प्रेशर हर जगह पे जाता है, पास्कल आपको पता है. सो फ्लूइड्स कैन ट्रांसमिट फोर्सेस मच मोर एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली देन सॉलिड्स. ठीक है, that was all. Thank you. थैंक यू सर.